جب کبھی سعودی عربیہ کا نام سننے کو ملے تو ذہن میں سب سے پہلے آئل اور ڈیزرٹس کا خیال آتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عربیہ کی 40% اکانومی تیل پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ان کی میجر ایکسپورٹ پیٹرولیم ہے اور دنیا کا لارجسٹ ایکسپورٹر بھی سعودیہ ہی ہے۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق سعودیہ نے ایک دن میں 12.1 ملین بیرلز لیکوڈ فیول ایکسپورٹ کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک تیل پر سے اپنی ڈیپینڈنس ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی اکانومی کو سٹیبل رکھنے کے لیے سعودیہ کو اپنی ریلائنس تیل پر سے ختم کرنی پڑے گی۔ اور انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودیہ اپنا پلان لے کر آیا ہے، سعودی ویژن 2030، اور اسی پلان کا ایک حصہ ہے نیوم کی سمارٹ سٹی بنانا۔ نیوم سٹی ٹوٹل 10 ریجنز پر مشتمل ہے، جن پر آگے چل کر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال ہم بات کرتے ہیں انہی میں سے ایک ریجن کی، جس کا نام رکھا گیا ہے دی لائن، جس پر دنیا بھر سے لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہ ریجن 170 کلومیٹر لانگ ایک اسٹریٹ لائن میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی وڈتھ صرف اور صرف 200 میٹر رکھی گئی ہے۔ یہ پورا شہر 500 میٹر اونچے 2 گلاسز کے بیچ میں بنایا گیا ہے، جس کا ٹوٹل ایریا بنے گا صرف اور صرف 34 اسکوائر کلومیٹر۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 10 جنوری 2021 کو اناؤنس کیے جانے والا ریجن آج کس سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اور کیا یہ کمپلیٹ ہو پائے گا یا نہیں، اور اگر کمپلیٹ ہو پائے گا تو مزید کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، کیا فائدے اور کیا نقصانات ہونے والے ہیں اس پروجیکٹ کے، اور کیسے شہر سے دور ریگستان میں بنائے جانے والے ریجن کو صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں ان سبھی سوالوں کے جوابات اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ ورڈ نیوم کمبینیشن ہے نیو پلس لیٹر ایم کا۔ نیو اینشینٹ گریک پریفکس ہے، جس کا مطلب ہے نیو یا پھر نیا، اور لیٹر ایم یہاں 2 چیزوں کو ریپریزنٹ کرے گا۔ ایک تو سعودی کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے نام کو، اور دوسرا ریپریزنٹ کرے گا عربک ورڈ مستقبل کو، جس کا مطلب ہے فیوچر، یعنی ایک فیوچرسٹک شہر بنانا چاہتا ہے سعودی عربیہ۔ نیوم کا ٹوٹل ایریا ہے قریب 26,500 اسکوائر کلومیٹر، جو کہ لوکیٹڈ ہے ریڈ سی کے نارتھ میں۔ آج سے 6 سال پہلے 24 اکتوبر 2017 کو جب سعودی پرنس محمد بن سلمان نے نیوم پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا، اس وقت یہ کسی خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خواب حقیقت میں بدلنے لگا۔ نیوم کے سی او نادمی النصر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اب تک 20% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے اکتوبر 19، 2022 کو نیوم کی جانب سے ریلیز کی جانے والی آفیشیل ڈرون فوٹیجز، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سائٹ پر بہت بڑی تعداد میں مشینری دن رات کام کر رہی ہے۔ ویسے کام کرنے سے یاد آیا، کیا آپ نے سوچا ہے کہ جو شہر سے دور ایک ریگستان میں ورکرز، لیبرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی لائف کی بیسک نیڈز ایک ریگستان میں رہ کر کیسے پوری ہوتی ہوں گی؟ تو اگر نیوم سٹی کی سیٹلائٹ امیجز کو دیکھا جائے تو وہاں پر آپ کو ایک اسپیسیفک فلی کنسٹرکٹڈ سیکٹر دیکھنے کو ملے گا، جو کہ یہاں پر کام کرنے والے امپلائیز کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں پر قریب 95,000 اکوموڈیشنز بنائی گئی ہے، جو کہ فلی فرنشڈ ہے تمام بیسک نیڈز کے ساتھ، جیسا کہ ہیلتھ کیئر کے لیے ہاسپٹلز، فٹنس کے لیے جیمز، پلینگ ایریاز اور ڈیلی نیسیسریز کے لیے شاپنگ مالز۔ اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ کوسچن جو کہ شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، اور وہ ہے پینے کا صاف پانی۔ ایک طرف صحرا اور دوسری طرف پانی، وہ بھی پینے کا صاف پانی۔ کوئی جوڑ نہیں بنتا نا، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا بھی سولوشن مل چکا ہے۔ سارے نیوم سٹی میں پینے کے لیے جو پانی استعمال ہوگا، اس سے سولر ڈومز کے تھرو پیوریفائی کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے ان گلاس ڈومز کو سمندر کے پانی سے بھرا جائے گا۔
और साइट पर लगे सोलर रिफ्लेक्टर्स की मदद से डोम में मौजूद पानी को गर्म किया जाएगा, जिससे साल्ट्स और बाकी मिनरल्स नीचे रह जाएंगे और डिस्टिल्ड वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा। ऊपर ठंडे ग्लास से टकराने के बाद वाटर वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे साइट से कलेक्ट कर लिया जाएगा। ओवरऑल नियोम सिटी में टोटल 10 रीजन्स बनाए जाएंगे, जिनमें से एक तो इसी साल 2024 में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे इंटरेस्टिंग रीजन की, जिसका नाम है डी लाइन। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि ये रीजन 170 किलोमीटर लंबी एक स्ट्रेट लाइन में डिजाइन किया गया है। इस लाइन की विड्थ सिर्फ 200 मीटर है, जिसकी साइड्स पर 2 500 मीटर ऊंचे ग्लासेस लगाए जाएंगे। बताया गया है कि 34 स्क्वायर किलोमीटर के इस रीजन में 9 मिलियन लोग रह पाएंगे। 9 मिलियन लोग एक बहुत बड़ा फिगर है 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के लिए। ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन के बराबर है, लेकिन एरिया न्यूयॉर्क से 23 टाइम्स कम है। इस सारे रीजन को 100% रीन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जाएगा, जैसा कि सोलर, विंड, हाइड्रोजन बेस्ड पावर जनरेशन को यूज करते हुए। एक सवाल आता है कि बगैर रोड्स और बगैर किसी भी किस्म की कार्स के इस रीजन के अंदर किस तरह ट्रेवल किया जाएगा। तो ट्रेवलिंग का इशू सॉल्व करने के लिए अंडरग्राउंड रेल सिस्टम बनाया जाएगा, जिसे नियोम स्पाइन प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिस पर इस वक्त काम भी जारी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रीजन के एक एंड से दूसरे एंड का टोटल डिस्टेंस, जो कि 170 किलोमीटर है, वो इस हाई स्पीड ट्रेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में कवर होगा। दी लाइन न सिर्फ ग्लोबली एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला प्रोजेक्ट भी है, जिनमें कई जगहों पर इनको क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है। फेमस आर्किटेक्ट पीटर कुक ने वीनस में एक इवेंट के दौरान दी लाइन प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस पर तनकीद करते हुए कहा कि दी लाइन प्रोजेक्ट की हाइट 500 मीटर के बजाय 200 मीटर रखी जाए तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। और साथ ही साथ सवालिया अंदाज में पूछते हुए कहा कि क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अपने इख्तिताम को पहुंच पाएगा। अगरचे नियोम ने ये दावा किया है कि ये एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट होगा, जिसमें कार्बन इमिशन बहुत कम होगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे माहौल जरूर असरअंदाज होगा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर प्रोग्राम डायरेक्टर प्रोफेसर फिलिप ओल्डफील्ड का कहना है कि 500 मीटर ऊंची बिल्डिंग को लो कार्बन मटेरियल से बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एस्टिमेट के मुताबिक लाइन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 1.8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो कि बराबर है यूके की 4 साल में रिलीज होने वाली कार्बन इमिशन के। मजीद ये कि दी लाइन प्रोजेक्ट का डिजाइन बायोडाइवर्सिटी और स्पेशली माइग्रेटिंग बर्ड्स के लिए काफी इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है। ग्लास से बनी ये लंबी और ऊंची लाइंस बर्ड्स की नेचुरल क्रॉसिंग को काफी डिस्टर्ब करेगी, जो कि एक खतरे की अलामत साबित हो सकता है। वैसे आपकी इस लाइन प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पर आता है वो रीजन जो कि इसी साल 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा, और इस रीजन की कामयाबी ओवरऑल नियोम प्रोजेक्ट को कामयाब कर सकता है, जिसका नाम है सिंडाला, जो कि एक लग्जरी आइलैंड है। नियोम ने IMG गोल्फ क्लब के साथ पार्टनरशिप की कि वो सिंडाला आइलैंड में 9 होल बीच फ्रंट गोल्फ फैसिलिटी ऐड करेगा। ये आइलैंड 51 लग्जरी आउटलेट्स और 86 बर्थ मेरीनास के साथ सारा साल टूरिस्ट की अट्रैक्शन का जरिया बनेगा, जिसको इसी साल 2024 में लॉन्च भी कर दिया जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी तक मालूम नहीं। इस आइलैंड में मौजूद बीच क्लब, यॉट क्लब, चिल स्पा टूरिस्ट के लिए एक हॉट स्पॉट साबित हो सकता है। ये आइलैंड यॉटिंग फैंस के लिए टॉप डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि नियोम ने JLS यॉट्स के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि सुपर यॉट्स एजेंसी है UAE की। इसके अलावा 3 बड़े होटल्स बनाए जाएंगे, जिसमें मैरियट ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल भी शामिल है, जो कि पहला मैरियट होटल होगा सऊदी अरेबिया में। अवेलेबल इमेजेस में देखा जा सकता है कि बहुत सी बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत सी अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपको क्या लगता है कि सिंडाला आइलैंड इसी साल अपना डेब्यू करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरे नंबर पर आता है एक और मेजर प्रोजेक्ट
जिसको ट्रोजीना का नाम दिया गया है। इस रीजन को माउंटेन्स ऑफ नियोम भी कहा जाता है। ये पहाड़ियाँ सऊदी अरेबिया की चंद बड़ी पहाड़ियों में शुमार होती हैं, जिनकी हाइट 26,000 मीटर तक बताई गई है। इस रीजन की मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर मौजूद स्की स्लॉपिंग फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पर मैन मेड फ्रेश वाटर लेक्स होंगी, विलास, चैलेट्स, लग्जरी होटल्स, और इन होटल्स की अमेनिटीज सुनकर तो शायद आप हैरान हो जाएं, जिसमें स्पा, बाथ हाउस, स्की स्लोप, रूफ और माइक्रो क्लाइमेट्स भी शामिल होगा। माइक्रो क्लाइमेट यानी आसान अल्फाज में कहा जाए तो मैन मेड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी, जहाँ पर सराउंडिंग एरिया से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। और कहा यह गया है कि 2026 तक ये रीजन कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। लेकिन ट्रोजीना को इतना तेजी से कंप्लीट करने के पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि सऊदी अरेबिया एशियन विंटर गेम्स 10th एडिशन 2029 को होस्ट करने की बिड जीत चुका है, जिस वजह से इन्हें प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना पड़ रहा है ताकि वो डेडलाइन को मीट कर सके। सऊदी अरेबिया की इन माउंटेन रेंजेस में टेम्परेचर सर्दियों में अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, लेकिन फिर भी स्की स्लॉपिंग के लिए मैन मेड बर्फ ही इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बर्फ कोई इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। सऊदी अरेबिया का विंटर गेम्स को होस्ट करने के डिसीजन के बाद इनको काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा आर्टिफिशियल स्नोफॉल को लेकर, क्योंकि ये काफी इम्पैक्टफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए। ओवरऑल नेचुरल इकोसिस्टम काफी डिस्टर्ब होता है इससे। चौथे नंबर पर आएगा नियोम का इंडस्ट्रियल रीजन ऑक्सीगन, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल शहर बनने जा रहा है। तकरीबन आधा ऑक्सीगन रीजन रेड सी पर फ्लोट करेगा। इस रीजन का मेन गोल होगा नियोम सिटी को इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब बनाना, जिससे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को काफी सपोर्ट मिलेगी, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी नियोम सिटी में। नियोम का ये इरादा है कि वो 2025 की शुरुआत तक अपना पहला कंटेनर्स टर्मिनल स्टार्ट कर दे लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए। ये पोर्ट सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी से ही ऑपरेट किया जाएगा और जीरो कार्बन इमिशन के साथ ये पोर्ट दुनिया का मोस्ट इको फ्रेंडली पोर्ट बन सकता है। नियोम ने एक और $2 बिलियन का मुआहिदा भी तय किया है, जिसके मुताबिक वो एक रेलवे बनाएगा जिसे कनेक्टर साउथ कहा जाएगा। ये रेलवे इंडस्ट्रियल सिटी ऑक्सीगन को कनेक्ट करेगा लाइन रीजन के साथ, जो कि लाइन से स्टार्ट होकर नियोम सिटी स्टेशन तक जाएगी और ऑक्सीगन पहुंचने से पहले वो नियोम बे मेंशंस और नियोम बे एयरपोर्ट से गुजर कर जाएगी। रेड सी पर भी एक बहुत बड़ा क्रूज टर्मिनल है, जहां से दुनिया की 40% पॉपुलेशन तक रसाई 6 घंटे के अंदर अंदर मुमकिन है, जिसका मकसद है रेड सी को ग्लोबल ट्रेड हब बनाना। ऑक्सीगन इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ रेजिडेंशियल एरिया, एंटरटेनमेंट, लेजर और टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स भी ऑन करता है, जो कि बताया गया है कि 2025 से 26 तक ओपन हो जाएगा। ऑक्सीगन नियोम का वाहिद रीजन है जहां कंस्ट्रक्शन ना होने के बराबर हुई है और इसकी कंप्लीशन डेट भी अभी तक कंफर्म नहीं है। वैसे तो नियोम सिटी में टोटल 10 रीजन्स बनाए गए हैं, लेकिन अब तक ऑफिशियली सिर्फ 4 रीजन्स ही की डिटेल सामने आ पाई है, इसलिए हमने सिर्फ 4 रीजन्स पर ही बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।